This video covers the short question of the Model Paper 2026 with well-explained answers designed to help you secure full marks in the examination. Question number 1 is define deadlock with an example. आपने deadlock को define करना एक example के साथ और उसका alternate question है what is the role of data visualization in the data science process? Define deadlock with an example. Definition. Deadlock is a situation in which two or more processes becomes permanently blocked. डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेस परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाती है और वो किसी दूसरे रिसोर्सेज का वेट कर रही होती है. फॉर एग्जांपल लेट्स एग्जांपल लेते हैं. ये मेरे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 और ये मेरे पास प्रोसेस 2 है. प्रोसेस 1 P1 and process 2 P2. This is resource 1 and this is resource 2. Resource 2. Okay. P1 is waiting. This is waiting for resource 2 and resource 2 is assigned to process 2 and process 2 is waiting for resource 1 and resource 1 is assigned to process 1. So this is an example of deadlock. Each process holds a resource and wait for another resource held by another process. Example is process P1 hold resource R1 and request resource R2. While process P2 hold resource R2 and request resource R1. Neither process can proceed resulting in a deadlock. तो इनमें से कोई प्रोसेस भी आगे मूव नहीं करेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा deadlock. Just I have given an example of deadlock. Process P1 waiting for resource R2 and R2 is assigned to process P2 and P2 waiting for resource R1 and R1 is assigned to process P1 and this situation becomes a deadlock. Okay. Question number 2. What is the role of data visualization in data science process? Data visualization presents data in graphical forms such as charts and graphs. अगर डेटा हम charts और ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो what we will get the benefit? It helps in understanding large and complex data set. हम बहुत से बड़े डेटा सेट्स को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Third point is about data visualization. It allows identification of patterns and trends in data. हम इससे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि डेटे का ट्रेंड्स किस तरफ चल रहा है. ठीक है, जैसे कि लाइन चार्ट से हम किसी भी डेटे को एनालाइज कर सकते हैं
कि ये इसकी ग्रोथ किस एंगल में हो रही है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसको हम पैटर्न और ट्रेंड्स कहते हैं। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो हम इससे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, हम कर्व को देख के, हम चार्ट्स को देख के, डेटा के फिगर को देखते हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। हम कोई एक बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं कि रिजल्ट शुड बी लाई विद इन दिस रेंज। Next question is, a user notices slow performance when running multiple applications on their computer. What system software function could be responsible for this issue? And what steps can be taken to optimize performance? System performance में process management आएगा। Process management में क्या होगा? The operating system shares CPU time among multiple running applications. जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस रन हो रही होती है उनको सीपीयू टाइम एलोकेट करेगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम्स। इसलिए हम यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्स सीपीयू टाइम अमंग मल्टीपल रनिंग एप्लीकेशंस। सेकंड पॉइंट इसमें है मेमोरी मैनेजमेंट। तो सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे हम कर सकते हैं, मेमोरी को मैनेज कर सके कैसे। लिमिटेड रैम मस्ट बी डिवाइडेड अमंग एप्लीकेशंस व्हिच कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, स्टेप्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो हम कौन से स्टेप्स कर सकते हैं कि हम परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके, ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। नंबर 1 इज क्लोज अननेसेसरी और बैकग्राउंड एप्लीकेशंस। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हो रही होती है जो बैकग्राउंड पे रन हो रही होती है, तो आप अननेसेसरी एप्लीकेशंस को क्लोज कर दीजिए। Second point is that increase system RAM to handle more process efficiently. आप सिस्टम की रैम को इंक्रीज करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। थर्ड पॉइंट इज यूज टास्क मैनेजमेंट टूल्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल रिसोर्सेज यूजेस। आप मैनेजमेंट टूल देखेंगे, मॉनिटर टूल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस कौन कितनी मेमोरी ले रहा है और हम उसको कैसे उसको हैंडल करना, या हम उतनी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं या नहीं। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, अ कंपनी वांट्स टू develop a system that quickly retrieves customer data from a large database. Which search algorithm would be most suitable for this task and how does it improve efficiency? बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी के पास बहुत बड़ी डेटा सेट है, बहुत बड़ा डेटा सेट है और वो उनमें से किसी एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या चीज यूज करेंगे जो कि एफिशिएंट हो। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, सर्च एल्गोरिदम। और वो हम कौन से सर्च एल्गोरिदम लगाएंगे जो एफिशिएंट होगा, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। क्योंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज मोस्ट सुइटेबल फॉर सर्चिंग डेटा इन अ लार्ज डेटाबेस। अगर वो लार्ज डेटाबेस होगी तो उसमें इजीली सर्च कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च में क्या होता है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि अगर मेरे पास एक अरे है या रिकॉर्ड है जो कि कितने रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, सपोज 0 से लेके ये लास्ट रिकॉर्ड है 1023, मींस चलते चलते कितने रिकॉर्ड होंगे, 1024 रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले हाफ सर्च करेगा, इसको हाफ में मिड फाइंड करेगा जो कि मिड आएगा इसका 512 पे। ठीक है, तो ये
पहले स्टेप में इसने क्या कर दिया, 512 रिकॉर्ड को सॉर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, फाइंड करेगा 512 को, फिर 2 पे डिवाइड करेगा, तो आंसर इसके पास आएगा 256। यानी कि सेकंड स्टेप में इसने 256 रिकॉर्ड्स में से फाइंड करेगा। ठीक है, यानी टू बाकी सबको इग्नोर कर देगा। थर्ड स्टेप में इसको भी डिवाइड कर देगा, तो और इसके पास कितने रह जाएंगे, 128 रह जाएंगे। फोर्थ स्टेप में इसके पास रह जाएंगे 64, और चलते चलते ये उस रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर आपके पास 1024 रिकॉर्ड्स हैं या 1024 एलिमेंट्स हैं, तो इसको कितने स्टेप में एक्सप्लोर करेगा, ये 10 स्टेप में उसको वो फाइंड आउट कर लेगा। कितने स्टेप बने, 10 स्टेप इसके बने। और इसमें हम इसलिए कहते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है, log n होती है। ठीक है, log n होती है। अब अगर मेरे पास log n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो मेरे पास अगर log 1024 होगा तो इसका आंसर मैं 10 स्टेप में फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास 2048 होगा तो इसका मैं 11 स्टेप में फाइंड आउट कर लूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 4096 होगा तो मैं 12 रिकॉर्ड्स में 12 स्टेप में इसको फाइंड आउट कर लूंगा। ये देखिए 5000 रिकॉर्ड्स को ये कितने स्टेप में परफॉर्म कर लेगा, 12 स्टेप में, इजी 12 स्टेप में ये फाइंड आउट कर लेगा। ठीक हो गया। और आपको पता है कि बाइनरी सर्च क्या काम करती है, बाइनरी सर्च उसका मिड फाइंड करती है। मिड से देखती है कि आपका जो सर्चिंग एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर हैं या लेसर हैं। अगर सर्चिंग एलिमेंट उससे ग्रेटर होगा तो वो लेफ्ट साइड को इग्नोर कर देती है और राइट की तरफ मूव कर देती है, फिर उसका मिड निकालेगी, देखेगी कि सर्चिंग वैल्यू, सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग रिकॉर्ड जो मिड एलिमेंट है उससे कम है। अगर कम है तो लेफ्ट साइड मूव करेगी, अगर वो ज्यादा है तो वो राइट साइड की तरफ मूव करेगी। तो इसमें देखिए it works efficiently when data is stored in a sorted order। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि डेटा मस्ट बी इन sorted order। अगर डेटा sorted order में नहीं होगा तो हम ये बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा और फिर बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज बाइनरी सर्च repeatedly divides the search space into halves। जैसा कि मैंने बताया आपके पास अगर 1024 रिकॉर्ड्स हैं, ये हाफ करेगी 512 पे, फिर हाफ करेगी 256 पे, फिर हाफ करेगी 128 पे, एंड सो ऑन इट विल मूव करेगी until it will reach to the searching element। तो इससे क्या होगा, this reduces the number of comparisons and allow faster data retrieval देन लीनियर सर्च। बजाय के लीनियर सर्च से ये क्या करेगी, डेटा को बहुत फास्ट से फाइंड आउट करेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अगर इसके पास 5000 रिकॉर्ड्स होंगे, 5000 रिकॉर्ड होंगे तो लीनियर सर्च कितना लेगी, लीनियर सर्च एटलीस्ट 5000 कंपैरिजन को लाजमी करना पड़ेगा वर्स्ट केस में। ठीक है, और जबकि अगर आप बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो बाइनरी सर्च में मैक्सिमम कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, मैक्सिमम इसको 12 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 12। अब देखिए 5000 कंपैरिजन और 12 कंपैरिजन में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE for a given set of predicted and actual values। Actual values are 35287 and predicted values are 2.5, 5.3, 1.8, 7.5 and 6.8।
स्टेप नंबर 1, राइट द MSC फार्मूला। हम क्या करेंगे, MSC का फार्मूला लिखेंगे जो कि इक्विवेलेंट होता है 1/n समेशन ऑफ y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड ऑफ स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे, एक्चुअल में से प्रेडिक्शन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और फिर इन सब को सम अप कर देंगे। कैलकुलेटेड स्क्वायर एरर्स। स्टेप नंबर 3, हमने क्या लिया, एक्चुअल वैल्यू 3 थी, प्रेडिक्टेड वैल्यू 2.5 थी, हमने इसका स्क्वायर लिया जो कि इक्विवेलेंट टू 0.25 के होता है। नेक्स्ट वैल्यू इज 5, एक्चुअल वैल्यू इज 5, प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 5.3, तो हमने इसका स्क्वायर लिया इक्वल टू 0.09। एक्चुअल वैल्यू इज 2, प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 1.8, तो हमने इसका स्क्वायर लिया जो कि इक्वल आएगा 0.04 के। थर्ड इज 8 माइनस 7.5, इसका स्क्वायर लेंगे that is equivalent to 0.25. Next is 7 minus 6.8, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसका फिर स्क्वायर लेंगे that is equal to 0.04. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम कंप्यूट MSE मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो हम क्या करेंगे, 0.25 ये पहली वैल्यू निकली, ठीक है, फिर इसके बाद 0.09, 0.04, 0.25, 0.04 और ये कितनी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, हमने इसको सम अप किया 0.67 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0.134। तो इस तरह आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.134। तो आप इस तरीके से आप मीन स्क्वेयर एरर कंप्यूट कर सकते हैं। Alternate question is convert 2F08 in hexadecimal to octal and binary. You have to convert into octal and binary. Octal means with the base of 8 and binary means with the base of 2. Now I am making a truth table because hexadecimal means 2 raised power 4, mean 16 combination should be there. Okay, 1 2 3, one more 4. Here I will write 1 2 4 8. Code of 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Here I will write 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. For 0 code is there. For 0 I will write all value 0. For 1, if I want to 1, I will switch on only this one, this number 1. Okay, I will write here 1. The rest of all 0 0 0 0. Next I need 2. For 2 I will switch on only this 2. 1, rest all 0 0 0 0. Next for 3 I will switch on 2 plus 1 3. This is 1, this is 1. 2 plus 1 3, rest 0 0. Next for 4 I will get only 4 only, switch on only 4. 1, rest of all 0. Next for 5 I will switch on 4 plus 1 5. 1 1, rest of 0. Next for 6 I switch on 4 plus 2 6, rest 0 0. For 7 I will switch on 4
plus 2 6 plus 1 7. Next 0. Remaining is 0. For 8 I will switch on only 8. Rest 0 0 0. For 9 I will switch on 8 plus 1 9. Remaining 0. For 10 I will write 8 plus 2 10. Remaining 0. For 11 8 plus 2 10 plus 1 11. Remaining 0. For 12 8 plus 4 12. Remaining 0. For 13 8 plus 4 12 plus 1 13. Remaining 0. 14 8 plus 4 12 plus 2 14. Remaining 0. For 15 8 plus 4 12 plus 2 14 plus 1 15. This is the truth table of 4 input. Okay. Now come to your questions. 2. I have written 0 0 1. 0 0 1 0 because if you will see 2 is this 0 0 1 0, this one. Okay. Next is F 1 1 1 1 tetra 1. If you will see in the table, F is this 1 1 1 1 1 1 1 1 1. All 1 are there. 4 times 1 are there. Next is 0, all 0. 8 8. See 1 0 0 0 0 mean 1 and 3 times 0. 1 and 3 times 0. You can convert hexadecimal to binary. 2 code is 0010 of 2. Then this one, this is F, and this is 0, and this is 8. Means 2F08 equivalent to this binary number. Clear? What you will do, group binary digit in set of 3 from right. 0 0 1 0, फिर इसके बाद 1 1 1 1, फिर इसके बाद 4 0 0 और इसके बाद 1 0 0 0. आपने ये लिया था. तो अब मैं 3 3 के सेट बनाता हूँ. ये मैंने ये सेट बना लिया, फिर इसके बाद दूसरा सेट बन गया, और ये तीसरा सेट बन गया 3 3 का. ये सेट बन गया, और ये सेट अकेला रह गया. अब ये बाइनरी कोड होता है 0 का, ये होता है 1 का, और ये होता है 4 का, और ये होता है 7 का, और ये होता है 2 का, और ये 0. ये आ गया इसका ऑक्टल में. किसमें आ गया? ऑक्टल में. 027410 ऑक्टल में आ गया. Convert binary to octal. And list the scenario in which all the functionality is dealt by the front end only. When a website or application perform all operations on the client side without using a server. तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट एंड इक्वल टू यूजर इंटरफेस प्लस यूजर इंटरेक्शन होती है. यानी आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो फ्रंट एंड इक्वल टू यूजर इंटरफेस, जिसमें यूजर का इंटरफेस होता है जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, प्लस यूजर इंटरेक्शन, आप जिसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड. Second point, when data validation, calculation, and user interaction are handled using front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. यानी ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्रंट एंड के तौर पर यूज की जाती है. आपसे पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि HTML इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड. तो ये तीनों फ्रंट एंड की एग्जांपल्स है, HTML, CSS, and JavaScript. Examples include simple calculator, static website, and
फॉर्म वैलिडेशन विदाउट डेटाबेस एक्सेस, जो कि विदाउट डेटाबेस एक्सेस के साथ जो एप्लीकेशंस काम करती है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। Alternative questions differentiate between system software and application software with example. System versus application software. System software manages and controls computer hardware and provides a platform for running application. System software ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की नीड्स होती हैं। अगर सिस्टम को ये प्रोवाइड ना किया जाए तो सिस्टम रन नहीं करता। ठीक है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपके सिस्टम में विंडोज नहीं होगी तो आपका सिस्टम चलेगा नहीं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम्पल, as an operating system such as Windows or Linux, these are operating systems. These are as system software. इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की नीड्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो यूजर के लिए लाजमी होती है, सिस्टम के लिए लाजमी नहीं होती, हमारे अपने पर्पस के लिए होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। ये हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और जनरल पब्लिक यूज के लिए भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर जनरल पब्लिक यूज के लिए, ठीक है, स्प्रेडशीट एंड वेब ब्राउजर, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं कि आपने अपनी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनना है तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा, लेकिन कस्टम बिल्ट आएगा, सिर्फ आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होती है जो सिस्टम की जरूरत होती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होती है जो यूजर की जरूरत होती है। Question number 2, fifth part. Write down any 4 application of a real-time operating systems, RTOS. One example is RTS, Air Traffic Control System. Second example is medical devices such as heart monitors and infusion pumps. क्योंकि आपको पता है कि RTS क्या होती है? Real time systems. A real time system is a system that gives output immediately within a fixed time. जो कि आपको आउटपुट इमीडिएटली प्रोवाइड करे, वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। Third example is industrial automation and robotic control system. Fourth example is embedded system in automobiles such as anti-lock braking system ABS. और आपका ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम भी आएगा, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम जो कि टाइमर बेस्ड होते हैं, टाइमर बेस्ड। Next alternative question is, how does blockchain technology ensure security? Blockchain uses cryptographic hashing to secure data stored in blocks. क्योंकि blockchain security means keeping data safe, unchanged and protected from hacking using blockchain technology. Each block is linked to the previous block, making data tampering difficult. Third point is data is stored across a distributed network, reducing the risk of a single point of failure. Fourth point is any change in data is immediately detected by the network participants. Question number 2, sixth part is, how does fraud detection benefit from machine learning? Machine learning algorithms can analyze large amount of transactions data to identify unusual patterns. अगर आपके रेगुलर ट्रांजैक्शन हो तो उनके रेगुलर पैटर्न होते हैं, ठीक है। जिसमें फ्रॉड इंक्लूड होता है उसमें
अनयूजुअल पैटर्न्स होते हैं, तो वो उनको रिकॉग्नाइज करता है। और आपको पता है कि मशीन लर्निंग by large number of transactions can be identified within a nanosecond. Second point is they can automatically detect fraudulent activities by learning from past fraud cases, क्योंकि उसके पास प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है और वो उस हिस्ट्री की रेंज में जो से पैटर्न्स आते होंगे तो वो उनको कंसीडर करेगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रॉड लिस्ट। यानी कि आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग क्या करेगी, मशीन लर्निंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, अनयूजुअल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, क्योंकि उसके पास पहले भी इस तरह के कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स होंगे जिनको इसने फ्रॉड लिस्ट में डाला होगा। तो जबकि ये भी कोई ऐसा पैटर्न आएगा जो कि अनयूजुअल होगा तो मशीन लर्निंग उसको फ्रॉड लिस्ट में डालेगी और उसको डिटेक्ट करेगी। Next point is machine learning system improve over time as more data becomes available, increasing detection accuracy. आपको पता है with the passage of time machine learning learn कर रही होती है और ज्यादा मेच्योर होती जाती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसको टाइम वो गुजारते जाएंगे तो मशीन लर्निंग इस तरह की एक्टिविटीज को जल्द से ही वो क्या कर लेगी, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। Alternative question is what are the two ways students can responsibly use social media when sharing information? Responsible use of social media is that students should verify the accuracy of information before sharing it on social media. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं तो यू मस्ट बी क्लैरिफाई द सोर्स कि वेदर ये सोर्स एक्नॉलेजेबल है या नहीं। आपको सोर्स की ऑथेंटिकेशन लाजमी करनी चाहिए, तो देन यू हैव टू फॉरवर्ड दैट मैसेजेस। Second point, they should respect privacy by not sharing personal or sensitive information of themselves or others. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशंस आप शेयर ना करें जो आपके लिए और दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक का बायस बने। तो आपको क्या करना चाहिए, दे शुड रिस्पेक्ट प्राइवेसी बाय अदर्स। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। आप एल्गोरिथम की कोई दो सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। नंबर 1 characteristic is that finiteness. An algorithm must terminate after a finite number of steps. एक खास स्टेप्स के बाद उस प्रोग्राम को, उस एल्गोरिथम को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वो एल्गोरिथम आपका वैलिड नहीं होगा या आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। मैं कहता हूं कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं while x is less than equal to 5 then you can print or output of x। अब देखिए जी, मैंने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखा है, 3 लाइनों का एल्गोरिथम जो कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, लूप मैंने लगा दिया x लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट x। तो ये कभी भी एल्गोरिथम टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। तो ये क्या हुआ, ये अनफाइनेटनेस की तरफ चला जाएगा, अनफाइनेटनेस की तरफ, क्योंकि इसमें वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसको किसी एक स्टेप पे जाके ये एंड नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपके जितने भी एल्गोरिथम आप लिखेंगे या जितने भी लिखे जाते हैं, दे मस्ट बी फाइनेटनेस। सेकंड पॉइंट इज डेफिनेटनेस। Each step of an algorithm should be clearly and unambiguously defined. कोई भी आपका स्टेप अनअम्बिगुअस नहीं होना चाहिए।
सॉरी, अम्बिगुअसली नहीं होना चाहिए। अम्बिगुअसली मीन्स कि आप सही तरीके से उसको पता नहीं चलेगा कि वो एक्स की तरफ मूव करेगा या वाई की तरफ मूव करेगा, या लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा। इसको अम्बिगुअस कहते हैं। तो आपके क्या होना चाहिए, आपका अनअम्बिगुअसली होनी चाहिए। ठीक है, कोई अम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। Each step of an algorithm should be clearly and unambiguously defined. For example, आपने क्या किया, आपने रीड एन किया और इसके बाद आपने लिखा जी रिजल्ट इक्वल टू n टाइम्स n, और फिर आपने आउटपुट में रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या, ये डेफिनेटनेस की वन ऑफ द एग्जांपल है कि डिफाइन बिल्कुल एक्यूरेट। वो आपसे एक वैल्यू n लेगा, उसका स्क्वायर लेगा, बाद में उसका रिजल्ट को शो कर देगा। Alternative question is that write down any two advantages of using an online computing platform over an offline one. कि आपने कोई दो से एडवांटेजेस लिखनी है जिसमें आपने ये शो करना है कि आप इंटरनेट पे यूज करते हैं क्या बेनिफिट होगा बजाय कि आप उसको ऑफलाइन के यूज करें। Online computing platform allow access to data and application from anywhere using the internet. अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह से, किसी भी प्लेस से आप उसको लॉगिन होके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यू कैन से दैट वन ऑफ द एग्जांपल इज गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव, आप गूगल ड्राइव में जो भी चीज रख देंगे कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकती है, बशर्ते के इंटरनेट होना चाहिए। वन ड्राइव, आप डेटा वन ड्राइव में सेव करें और जहां से मर्जी एक्सेस कर सकें। ईमेल। Second point is that they support easy collaboration and sharing of resource among multiple users. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने कुछ फाइल्स एक वन ड्राइव पे रख देते हैं। ठीक है, ये आप वन ड्राइव पे ये डेटा पड़ा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि मुझे ये स्लाइड्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ स्लाइड चाहिए, तो मैंने क्या रखा हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं इसको वन ड्राइव पे रख दूंगा और जिस स्टूडेंट्स को ये चाहिए होगी वो जस्ट मुझे ईमेल करेगा, तो मैं ईमेल में उसके साथ शेयर कर दूंगा। तो यानी कहने का मकसद ये है क्योंकि ये ऑनलाइन पड़ी हुई है तो easily can be shared with other users. Question number 8. Why is it beneficial to break a program into smaller module? Give any two reasons. Breaking a program into smaller modules make the program easier to understand and manage. कि अगर आप एक बड़े प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देंगे तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो इसके लिए आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसका आप एक फंक्शन बना लें जिसमें आप क्या करें, ऐड एम्प्लॉय करें, कि ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ऐसा सब प्रोग्राम होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय को ऐड करे। एक दूसरा फंक्शन होना चाहिए जो क्या करे, जितने भी एम्प्लॉय है उनको व्यू कर सके, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमें प्रोवाइड कर सके। थर्ड एक प्रोग्राम आप बना लेते हैं, सब प्रोग्राम, जिसमें आप क्या देते हैं कि इसमें अपडेट करें। इफ यू वांट टू अपडेट एन एम्प्लॉय यू कैन write an ID number of that employee and you can access it and easily you can update it. Okay, and fourth one is delete. Okay, just I'm giving you simple example about how to manage or how to divide a big program into smaller programs like in functions or modular program. Second point is that it simplifies debugging and testing as each module can be checked independently. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दी कि आप ईएमएस बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको एम्प्लॉय को ऐड करते वक्त कोई एरर फेस करना पड़ रहा है तो देन यू हैव टू गो टू ऐड एम्प्लॉय फंक्शंस ओनली।
ओके, तो आपको एरर ट्रेस करने में भी इजी हो जाता है जब आपका प्रोग्राम, आप प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए, और जितने भी अप्रोचेस, जितने भी प्रोफेशनल लोग जो काम कर रहे होते हैं वो इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स बना लेते हैं, तो देन दे आर कॉलिंग इनटू अ प्रॉपर प्लेस। Third point, module can be reused in other programs, saving development time. आप अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सब प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, तो आप व्यू लिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आप क्या कर सकते हो, ऐड एम्प्लॉय कर सकते हो, व्यू लिस्ट कर सकते हो। कल को आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना पड़ जाता है, तो उसमें भी आपको स्टूडेंट तो ऐड करना पड़ेंगे। तो आप वही प्रोग्राम जो ऐड एम्प्लॉय के लिए यूज कर रहे थे, वही आप ऐड स्टूडेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट देखने के लिए भी, अपडेट करने के लिए भी सेम वो आप उसमें दोबारा यूज कर सकते हो। तो देन दिस इज द बेनिफिट of the modular programming. Alternative question is that how does choosing the right research method impact decision making in research? Provide an example. Impact on decision making: choosing the correct research method ensure accurate data collection, leading to reliable and informed decisions. आपको ऑलवेज करेक्ट रिसर्च मेथड ही सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप करेक्ट मेथड आप सिलेक्ट करेंगे, तो देन जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएंगी, तो वो भी आपके पास रिलायबल होगी, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड इज अ की टू सक्सेस। Example, using a survey method to collect opinions from students helps in making decisions about improving teaching methods. This is one of the example. Survey method, voting. Question number 9, what factors should be considered while selecting a machine learning model for a data analysis? Nature and size of the data set. Some models perform better with large datasets, while others are suitable for smaller datasets. बाज़ औक़ात आपके पास लार्ज डेटासेट्स को भी, उस पे भी वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, वो स्मॉलर डेटासेट पे काम कर रहे होते हैं। अगर लार्ज डेटासेट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इर्रेगुलरिटी शो करेगा। Model accuracy and complexity. The model should provide accurate results without unnecessary computational complexity. आपको रिजल्ट चाहिए, accurate रिजल्ट चाहिए, without taking more time, without taking other resources, without do some other computational complexity. How does network monitoring help prevent cyber threats? Network monitoring helps in the early detection of unusual or suspicious network activities. Network monitors क्या करती है? नेटवर्क मॉनिटरिंग क्या करेगी? इससे आपको पता चल जाता है कि कोई भी अनयूजुअल जो एक्टिविटीज होती है, या कोई ऐसा पैटर्न जो होने जा रहा है जो कि पहले रेगुलर नहीं है, तो देन यू कैन डिसाइड, देन यू कैन गेस दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपेंड. Next, it enables quick response to cyber attacks, thereby reducing data loss and system damage. इससे क्या हो जाता है कि आपको पहले से ही आगाही हो जाती है। जब आप पहले से आगाह हो जाती है, तो देन यू कैन टेक actions to prevent this type of activities. It enables quick response to cyber attacks, thereby reducing data loss and system damage. इससे क्या होता है कि आपका डेटा लॉस होने से भी बच जाता है, और सिस्टम भी डैमेज होने से बच जाता है, इफ यू नो ऑन टाइम, इफ यू नो ऑलरेडी और ऑन टाइम. Question number 10, how do differences in shape, center and spread help in understanding the characteristics of a data set? Shape shows the overall distribution of data, such as
such as whether it is symmetric or skewed, जो शो करती है कि ये सिमेट्रिक है या सिक्यू टाइप की शेप है। Center indicates the typical or average value of the data set, such as the mean or median value. Third point is spread. Describe how much the data value vary, showing the range or dispersion the database data set. ये spread क्या करती है कि वो कितना रेंज वैल्यू से अवे है या कितना क्लोजली टू अदर वैल्यूज के हैं। Alternate question is that why is email filtering important in protecting users? Provide any two reasons. Email filtering helps block spam, phishing emails, and malicious content before reaching user. Email filtering help block spam कि जो ऐसी ईमेल्स होती है जो कि स्पैम ईमेल होती है, जो कि एक्स्ट्रा ईमेल्स होती है फ्रॉम कंपनीज की तरफ से होती है, डिफरेंट जस्ट लाइक पीपल कैन स्प्रेड ऑन योर ईमेल। फिशिंग कुछ ऐसी ईमेल होती है जिसमें क्या होता है कि आपको डॉच दिया जाता है, जो कि कुछ ऐसे लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जब उसको क्लिक करें तो उससे क्या होता है, वो किसी यानी कि सस्पिशियस एक्टिविटीज होती है, उनको क्लिक करने से कुछ आपकी मशीन्स की पोर्ट्स ओपन हो सकती है, आपका कंप्यूटर अनलॉक हो सकता है, जो कि सिक्योर पोर्ट्स होती है, सिक्योर लेयर हो सकती है, वो ओपन हो सकती है। ठीक है। एंड मेलिशियस कंटेंट्स, और कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिनसे आपके डेटे को प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा आपका डिलीट कर सकते हैं, डेटा आपका चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो वायरस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। तो इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन है, यू शुड अवॉइड टू ओपन द email that you are not familiar, mean unknown email. You should not respond to that emails. Second point, it protects user from malware and reduce the risk of data theft and cyber attacks. तो सेकंड पॉइंट ये होता है कि फिल्टरिंग करने से ये आपको भी हो जाता है कि इसमें मैलवेयर और आपके डेटा के चुराने का भी रिस्क कम हो जाता है। क्वेश्चन 10, 11th part, that is the last part. How can AI be used responsibly in law enforcement, and list two suggestions. Number one is AI system should be used with proper human oversight to avoid biased or unfair decisions. ये बहुत अच्छा है कि AI कम से कम ये फेयर डिसीजन ही करेगी और बायसनेस को भी वो खत्म करेगी, क्योंकि मशीन लर्निंग जस्ट दे कैन वर्क ऑन मेरिट। सेकंड पॉइंट, डेटा यूज्ड बाय AI शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड कलेक्टेड इथिकली टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स। Alternate questions. What is phishing and how does it affect users? What is phishing? Phishing is a cyber attack in which attackers send fake messages or emails to trick user into revealing personal or financial informations. आपके पास एक वेबसाइट होती है पेपाल के नाम से, पेपाल। अगर इसको ऐसे लिखा जाए पे पाई इस जैसा, तो अब देखिए जब आप इसको गौर से नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे ये पेपाल ही, तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पेपाल तो नहीं होगा, क्योंकि जो फेक वेबसाइट होती है उन्होंने वेबसाइट ऐसे अंदाज से, ऐसे तरीके से डिजाइन की होती है कि यू कैन नॉट जज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वेबसाइट एंड फेक वेबसाइट। Then what you will do? You will provide your informations. When you will provide your information, all the information stored into their database, and they can do whatever they want because you have given all the correct information. जब आपकी information उनके पास
चले जाएगी तो क्या करेगा, वो उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने तो अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी, तो अकाउंट तो वहां पे चलेगा नहीं। तो अब वो यूजर, वो हैकर आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे यूज करके आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाउ डज इट अफेक्ट यूजर्स? इट कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉस एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू यूजर अकाउंट्स। ये 3 ड्रॉबैक्स मैंने बता दिए कि अगर आप फिशिंग जो होगी, वेबसाइट होगी, फेक वेबसाइट को क्लिक करेंगे या वहां पे डेटा स्टोर करवा देंगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, और अनऑथोराइज एक्सेस यूजर के पास जा सकती है। तो देन यू हैव टू अवॉइड टू ओपन अननोन ईमेल्स।